गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा एक्सपेरिमेंट है इसमें हम फिज़िकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में पढ़ेंगे और इसमें हमारे पास टोटल 5 पार्ट है। पहला पार्ट है रिएक्शन ऑफ आयरन विथ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन वाटर। तो देखिए, इसको करने से पहले मैं आपको वीडियो के थ्रू इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। Reaction of iron nails with copper sulfate solution in water. The world around us is made up of matter. With the planet constantly undergoing changes, there are changes in look and composition of the matter itself. Scientists have divided these changes in matter into 2 categories: physical and chemical changes. A physical change is a change in the appearance or physical properties of a substance, and it does not produce a new substance. For example, melting of ice cream is a physical change. A chemical change is a change that creates a new substance. The burning of paper is a good example of a chemical change. The aim of this experiment is to carry out the reaction between an iron nail and copper sulfate solution in water and classify it as a physical or chemical change. Materials required: copper sulfate solution, iron nails, boiling tubes, stands with lamps and a piece of thread. Procedure: take 2 stands with lamps and fix one boiling tube in each stand. Pick one of the iron nails from the watch glass, tie it with a piece of thread and hang it in one of the boiling tubes. Then tie the other end of the thread to the stand. Take copper sulfate solution in a beaker and pour some of it into both the boiling tubes. Keep the apparatus undisturbed for a day. After 1 day, remove the iron nail immersed in the solution and place it in the watch glass. Compare the 2 nails placed in the watch glass. The iron nail placed in the watch glass shows a grayish color of iron, whereas the iron nail dipped in the copper sulfate solution shows a brown coating. This indicates that copper is deposited on the iron nail by displacing iron. The color of the copper sulfate solution in which the iron nail was dipped changes from blue to green, whereas the color of copper sulfate solution in the other boiling tube remains the same. The change of color from blue to green of the solution in which the iron nail was dipped indicates a chemical change in which copper has been displaced by iron from the copper sulfate solution and a new compound, that's FeSO4, is formed. Precautions: try to avoid touching the copper sulfate solution and the nail dipped in the copper sulfate solution. It is better to wear gloves while using materials containing copper sulfate. अब बच्चों, सेकेंड इसका जो पार्ट है ये है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर। Burning of magnesium in air. It is important to understand the difference between physical and chemical changes. A
physical change does not produce a new substance, and it can mean a change in size, shape, or the state of the matter of substance. A chemical change produces a new substance, and it can mean a change in color or odor, the appearance of bubbles, release of energy, or formation of a precipitate. Some examples of chemical changes are burning of wood, dissolving of salt in water, mixing acids and bases, and digesting food. Examples of physical changes are crumpling a sheet of paper, melting an ice cube, casting silver in a mold, and breaking a bottle. Our aim here is to carry out the reaction of burning magnesium in air and classifying it as a physical or chemical change. Materials required: magnesium ribbon, red litmus paper, a pair of tongs, and a Bunsen burner. Procedure: cut a piece of magnesium ribbon and hold it using a pair of tongs. Flame this ribbon in the Bunsen burner, collect the burnt ash in a watch glass and label it as magnesium oxide. This is a chemical reaction as oxygen and magnesium come together to form magnesium oxide. Now, take red litmus paper and moisten it with distilled water. Place the moist red litmus paper over the watch glass so that it is in contact with the magnesium oxide. You can now see that the red litmus turns blue. From this, we can infer that magnesium oxide is basic in nature. This reaction shows a chemical change as the reactants, oxygen and magnesium combine together to form a new substance, that is, magnesium oxide. The formed magnesium oxide has different chemical composition which is different from both magnesium and oxygen. Precautions: make sure you hold the magnesium ribbon securely with a pair of tongs while burning it. It is better to use sunglasses to protect the eyes from the bright white light produced by burning magnesium because it contains ultraviolet light that can permanently damage the retina of the eyes. बच्चों थर्ड पार्ट है यहाँ पर रिएक्शन ऑफ जिंक विथ सल्फ्यूरिक एसिड. Reaction of zinc with dilute sulfuric acid. Everything that has mass and volume is called matter. All matter, regardless of state, undergoes physical and chemical changes. A physical change occurs when a substance changes its state but does not change its chemical composition. For example, tearing a paper, melting of cheese, and cutting a piece of wood into smaller pieces are physical changes. A chemical change occurs when a substance changes into something new. For example, formation of a precipitate, evolution of a gas, and corrosion are chemical changes. In this experiment, our aim is to carry out the reaction of zinc with dilute sulfuric acid and classify it as a physical or a chemical change. Materials required: boiling tube, dilute sulfuric acid, NaOH, zinc dust, spatula, and a dropper.
Procedure. Take a boiling tube and add a few drops of dilute sulfuric acid using a dropper and place it in a test tube rack. Then add some zinc dust into the boiling tube using a spatula. In this reaction, zinc reacts with dilute sulfuric acid to form an aqueous solution of zinc sulfate and hydrogen gas evolves. That is, Zn plus H2SO4 gives you ZnSO4 plus H2. Now, take a red litmus paper and hold it over the mouth of the boiling tube. There is no change in the color of the red litmus paper. Repeat the same step with blue litmus paper. In this case as well, no change is observed. From this, we can infer that hydrogen gas evolved is neither acidic nor basic in nature. We can do two tests to confirm the presence of zinc sulfate solution in this reaction. In the first test, add a few drops of NaOH solution into the boiling tube containing zinc sulfate using a dropper. On adding the NaOH, a white gelatinous precipitate of zinc hydroxide is formed. ZnSO4 plus 2NaOH gives you ZnOH2 plus Na2SO4. Again, add excess of NaOH into this white precipitate and shake the boiling tube well. We can see that the precipitate dissolves on adding excess NaOH. In the second test, take a clean boiling tube and clamp it in a stand and add a small amount of ferrous sulfide into this boiling tube using a spatula. Close the mouth of the boiling tube with a double-bored cork and insert a thistle funnel and a bent tube into the two different holes in the rubber cork. Then take a boiling tube containing zinc sulfate solution and clamp it in another stand. Now, add a few drops of dilute HCl to the boiling tube containing ferrous sulfide using the thistle funnel. We can see that hydrogen sulfide gas evolves in the boiling tube containing ferrous sulfide. That is, FeS plus 2HCl gives you FeCl2 plus H2S. This hydrogen sulfide gas passes through the bent tube and reacts with zinc sulfate solution to form a white precipitate of zinc sulfide. That is, ZnSO4 plus H2S gives you ZnS plus H2SO4. Precautions. Use the chemicals judiciously. Keep the mouth of the boiling tube away from your face and also from other classmates. नेक्स्ट है बच्चों हीटिंग ऑफ कॉपर सल्फेट। Of copper sulfate. Physical and chemical changes are related to physical and chemical properties. A physical change does not produce a new substance, whereas a chemical change produces a new substance. The starting and ending materials of a physical change are the same, even though they may look different. But in a chemical change, a new substance is produced by showing signs such as light, heat, color change, gas production, odor, or sound. Examples of physical changes include cutting of paper, water turning into ice, and stretching of a rubber band. Examples of chemical changes include burning of wood, water evaporation, and burning of paper. The aim of this experiment is to carry out the reaction
heating of copper sulfate and classify it as a physical or a chemical chain. Materials required: hydrated copper sulfate crystals, distilled water, boiling tube, spatula, test tube holder, and Bunsen burner. Procedure: take a small amount of hydrated copper sulfate crystals in a dry boiling tube using a spatula. Hold the boiling tube with a test tube holder. Heat the boiling tube over the flame of a Bunsen burner, first gently and then strongly. On heating, the color of copper sulfate crystals changes from blue to white. Now, remove the boiling tube from the flame and cool it for some time. Label the content of the boiling tube as anhydrous copper sulfate. Then, add a few drops of distilled water into the boiling tube containing anhydrous copper sulfate. On adding distilled water, white anhydrous copper sulfate turns blue, which indicates that the blue-colored hydrated copper sulfate is again regenerated. So this reaction shows a reversible chemical change. Precautions: always use a test tube holder while heating the test tube. Take only a small quantity of copper sulfate crystals for heating over the flame of the burner. अब बच्चों नेक्स्ट है फिफ्थ, रिएक्शन ऑफ सोडियम सल्फेट विद बेरियम क्लोराइड इन द फॉर्म ऑफ देयर सॉल्यूशंस इन वाटर। बच्चों अब तक जो आपने पहला पार्ट किया है, सेकेंड, थर्ड और फिफ्थ पार्ट जो अभी करेंगे, ये सारे के सारे केमिकल चेंजेस के एग्जांपल हैं। वेयर एज फोर्थ जिसकी वीडियो अभी आपने देखी है, ये फिजिकल चेंज है। Reaction between sodium sulfate and barium chloride solution. Chemical reactions are part of our daily life, from photosynthesis occurring in plants to cooking of food in the kitchen. There are different sets of chemical reactions happening around us. A chemical reaction happens when two or more elements interact together to form a chemical bond between atoms and form a chemical compound. Chemists have classified the chemical reactions into 4 different types depending upon the type of chemical change occurring in a reaction. Combination or synthesis reactions are those in which 2 or more chemical elements or compounds unite to form a more complex product. Decomposition reactions are those in which a compound is decomposed into smaller compounds or elements. Single displacement reactions are characterized by an element being displaced by a more reactive element. Double displacement reactions represent those reactions in which 2 compounds exchange ions or bonds to form different compounds. The aim of this experiment is to study the reaction between sodium sulfate and barium chloride solutions and classify it as a combination reaction, decomposition reaction, displacement reaction, or double displacement reaction. Materials required: boiling tubes, solution of sodium sulfate and solution of barium chloride. Procedure:
Take a small quantity of sodium sulfate solution in a boiling tube. Then, take a small quantity of barium chloride solution in another boiling tube. Pour the barium chloride solution taken in the boiling tube into the boiling tube containing sodium sulfate solution. On adding, a white precipitate of barium sulfate is formed in the boiling tube. This confirms the presence of sulfate ions in the solution. Now keep the contents of the boiling tube undisturbed for 10 minutes. After 10 minutes, we can see that the white precipitate in the test tube settles to the bottom of the test tube. Now, decant the upper solution in the boiling tube into the beaker. Add a few drops of dilute HCl to the white precipitate of barium sulfate and shake the test tube well. You can observe that white precipitate remains insoluble in the dilute HCl. Here, a chemical reaction occurs between sodium sulfate and barium chloride to form barium sulfate and sodium chloride. This is a double displacement reaction in which sulfate ions are displaced by chloride ions and chloride ions are displaced by sulfate ions. बच्चों ये पांचों पार्ट थे। इन पांचों पार्ट्स में हमें ये देखना था इनमें से कौन सी केमिकल रिएक्शन है और कौन सी फिजिकल रिएक्शन है। तो इसमें जो फोर्थ था हीटिंग ऑफ कॉपर सल्फेट, ये सिर्फ फिजिकल चेंज है। इनके अलावा जितने भी चेंजेस आपने पढ़े हैं देखे हैं यहाँ पर, वो सारे के सारे केमिकल चेंज हैं। देखिए इसमें जो सबसे पहले आपने पार्ट किया था उसमें हमने आयरन को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाला था। तो उसमें कौन सी रिएक्शन हुई थी वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर आयरन जो है कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है और फेरस सल्फेट और कॉपर जो है वो फॉर्म होता है। क्लियर है। देखिए हमने इसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया था, उसका कलर क्या होता है ब्लू। उसके अंदर हमने क्या किया था आयरन नेल्स को रख दिया था। सही, धीरे धीरे ये आपस में रिएक्ट करते हैं। देखिए होता क्या है आयरन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, तो वो क्या करता है उसको उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। क्लियर है। तो सल्फेट आयंस के साथ वो क्या करता है अपने आप को जोड़ लेता है और कॉपर को वहाँ से हटा देता है। तो इससे सॉल्यूशन जो बनता है वो बनता है फेरस सल्फेट। उसका कलर क्या होता है पेल ग्रीन। और ये जो कॉपर की डिपॉजिट्स होती हैं ये किसके ऊपर चले जाते हैं आयरन के ऊपर चले जाते हैं। क्लियर है। तो ये रिएक्शन भी आपको याद रखनी है। बेशक ये 10th में है मगर फिर भी आपको याद करनी है रिएक्शन। सही, 10th में आपको इसका ज़्यादा प्रॉपर लॉजिक पता लग जाएगा। क्लियर है। इस तरह की रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें ज़्यादा रिएक्टिव एटम जो होता है वो कम रिएक्टिव को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से क्या करता है डिस्प्लेस कर देता है। इनिशियली जो आपने सॉल्यूशन लिया था कॉपर सल्फेट उसका कलर होता है ब्लू। रिएक्शन के बाद ये कॉपर सल्फेट धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाता है फेरस सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है और उसका कलर क्या होता है पेल ग्रीन। सेकंड, स्टार्टिंग में जो आपने आयरन ली थी उसके ऊपर धीरे धीरे कॉपर के जो डिपॉजिट होते हैं रेडिश ब्राउन वो क्या होते हैं इकट्ठा होना चालू हो जाते हैं। तो ये बच्चों पहली रिएक्शन थी जिसमें हमने आयरन को कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कराया था। और ये जो चेंज है ये कौन सा चेंज होता है बच्चों ये केमिकल चेंज होता है। सेकंड है इसमें हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था एयर में। तो जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं एयर में तो वाइट पाउडर बनता है किसका मैग्नीशियम ऑक्साइड का। अच्छा अब देखिए यहाँ पर दो रिएक्टेंट्स जो है मिलकर एक कंपाउंड बना रहे हैं। तो इस तरह की रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं
कॉम्बिनेशन रिएक्शंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। क्लियर है? ऐसी रिएक्शंस जहां पर दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट जुड़कर एक कंपाउंड बनाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों? उन्हें हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस बोलते हैं। अच्छा, फिर हम क्या करते हैं? हम ये चेक करते हैं इसका नेचर क्या है। वैसे तो ये 10th का है, मगर फिर भी आप समझ लीजिए। हम क्या करेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो पाउडर होगा, सही, उसको क्या करेंगे, हम रिएक्ट कराएंगे या उसको हम किसके साथ ट्रीट करेंगे? हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक ब्लू लिटमस लेंगे, सॉरी रेड लिटमस लेंगे। रेड लिटमस को जब आप इसके ऊपर रखोगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड के ऊपर, सही, वेट रेड लिटमस होना चाहिए, उसको जब आप इसके ऊपर रखोगे तो धीरे धीरे वो ब्लू हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है वो बेसिक होता है नेचर में। और इस रिएक्शन को बच्चों हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करता है। अब थर्ड था बच्चों, यहाँ पर हम क्या करते हैं? जिंक ग्रेन्यूल्स को रिएक्ट कराते हैं किसके साथ? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो देखिए यहाँ पर जो जिंक ग्रेन्यूल्स हैं ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। अब जिंक जो होता है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो वो क्या करता है? उसको सल्फ्यूरिक एसिड में से क्या करता है? डिस्प्लेस कर देता है, और ये जो सल्फेट आयंस हैं इनके साथ खुद अपने आप को जोड़ लेता है। तो जब हम जिंक को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा? एक तो जिंक सल्फेट बनेगा और एक हाइड्रोजन गैस क्या होगी? रिलीज होगी। मान लीजिए आपको एक ये टेस्ट ट्यूब दे रखी है, इसके अंदर हमने जिंक ग्रेन्यूल्स और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को डाल दिया, तो ये आपस में रिएक्ट करेंगे। एक तो जिंक सल्फेट बनेगा, सॉल्यूशन जो है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड धीरे धीरे जिंक सल्फेट में क्या होगा? कन्वर्ट हो जाएगा, और हाइड्रोजन गैस क्या होगी? रिलीज होगी। हम क्या करते हैं? यहाँ पर एक कॉर्क लगा देते हैं, और उसके अंदर जो होल होता है उससे एक डिलीवरी ट्यूब को हम क्या करते हैं? पास करते हैं। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए यहाँ से जो हाइड्रोजन गैस आएगी वो डिलीवरी ट्यूब से बाहर आ जाएगी, टेस्ट ट्यूब से। अब हम क्या करते हैं? कोई भी बर्निंग स्प्लिंटर इस टेस्ट ट्यूब के इस डिलीवरी ट्यूब के मुंह पर अगर हम लाएंगे तो वो पॉप साउंड से क्या होगा? जलेगी। पॉप साउंड क्या करेगी? प्रोड्यूस करेगी, विच कन्फर्म्स दैट जो गैस रिलीज हो रही है वो कौन सी है? हाइड्रोजन गैस है। अब बच्चों नेक्स्ट है हीटिंग ऑफ कॉपर सल्फेट। देखिए कॉपर सल्फेट देखिए कॉपर सल्फेट दो तरह के होते हैं। एक तो होता है हाइड्रस। हाइड्रस वो कॉपर सल्फेट होता है, हाइड्रस कॉपर सल्फेट वो कॉपर सल्फेट होता है जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। और दूसरा होता है एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट वो कॉपर सल्फेट होता है जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं। क्लियर है? अच्छा, आप देखिए जो हाइड्रस कॉपर सल्फेट होता है उसका फॉर्मूला होता है CuSO4.5H2O, और इसका केमिकल नेम क्या होता है? कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। जब हम इसको गर्म करते हैं तो गर्म करने से इसके जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं सारे बाहर निकल जाते हैं और हमें कॉपर सल्फेट मतलब एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट मिलता है। जो हाइड्रस कॉपर सल्फेट होता है उसका ब्लू कलर होता है, और जो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट होता है इसका कलर क्या होता है बच्चों? वाइट। अच्छा, अब देखिए इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पर एक रिएक्टेंट जो है वो दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में क्या होता है? टूट जाता है। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए
सबसे पहले हमने क्या किया, हाइड्रस कॉपर सल्फेट लिया, इसका कलर क्या होता है ब्लू। इसको जब हम गर्म करेंगे तो ये सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल्स अपने क्या करेगा, लूज कर देगा और एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट बनाएगा, जिसका कलर क्या होता है बच्चों, वाइट कलर होता है। अच्छा, अब अगर मान लीजिए आप इस एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट के अंदर पानी डालते हैं तो दोबारा से ये हाइड्रस कॉपर सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। मान लीजिए आपको एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट दे रखा है जिसमें वाटर नहीं होता है, इसका कलर क्या होता है, वाइट। इसके अंदर जब आप पानी डालेंगे तो ये दोबारा से हाइड्रस कॉपर सल्फेट में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा और इसका कलर क्या होगा, ब्लू। क्लियर है। और ये जो चेंज है ये क्या होता है, फिजिकल चेंज होता है, क्योंकि ये रिवर्सिबल है। सही है। आपने क्या किया, हाइड्रस कॉपर सल्फेट लिया, उसको गर्म किया तो उसने अपने सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स लूज कर दिए। जब एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट आपने लिया, उसके अंदर पानी डाला तो दोबारा से उसने क्या किया, वाटर मॉलिक्यूल्स गेन कर लिए। पहले कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो ब्लू होता है, उसको गर्म करने के बाद वाइट हो जाता है। वाइट कॉपर सल्फेट में जब आप वाटर डालेंगे वो दोबारा से क्या होता है, ब्लू हो जाता है। तो इसका मतलब ये जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसलिए इस चेंज को हम क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज बोलेंगे। और ये कैसी रिएक्शन है बच्चों, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, दूसरी वाली। सही। यहाँ पर दो रिएक्टेंट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा जो रिएक्टेंट होते हैं वो मिलकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं। अब बच्चों लास्ट और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन बिटवीन सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड इन द फॉर्म ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, और ये 9th में भी और 10th में भी पूछी जाती है बहुत। बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो एक तो बेरियम सल्फेट बनता है और दूसरा सोडियम क्लोराइड बनता है। क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर सोडियम जो होता है, सोडियम आयंस जो होते हैं वो बेरियम आयंस को क्या करते हैं, उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देते हैं, और बेरियम जो होते हैं वो सोडियम को क्या करते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है, मतलब सोडियम और बेरियम आयंस क्या करते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं एक दूसरे को। इस तरह की रिएक्शन को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। और जितनी भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती हैं उनमें नॉर्मली क्या होता है, प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, इसलिए इस तरह की रिएक्शंस को हम प्रेसिपिटेट रिएक्शंस भी बोलते हैं। इनको हम बच्चों प्रेसिपिटेट रिएक्शंस भी बोलते हैं। यहाँ पर सोडियम और बेरियम आयंस आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे की पोजीशन को क्या करते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे दोनों डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं ना, सोडियम और बेरियम आयंस अपने जगह क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। और इसमें नॉर्मली क्या होता है, कोई ना कोई प्रेसिपिटेट जो होता है वो फॉर्म होता है। जितनी भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती हैं इनमें नॉर्मली प्रेसिपिटेट जरूर फॉर्म होता है, इसीलिए इन्हें हम प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी बोलते हैं। सही। अच्छा, यहाँ पर जो है प्रेसिपिटेट बेरियम सल्फेट का बनेगा, और ये कैसा प्रेसिपिटेट होता है बच्चों, व्हाइट कलर का होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बच्चों ये क्वेश्चन है, ये आप खुद करेंगे, मैं आपको सिर्फ MCQs करवा रहा हूँ। देखिए, इसमें आप दो चीज़ें याद रखिएगा, हमें दो तरह के सब्सटेंसेस को चेक करना होता है, एक एसिडिक और दूसरा बेसिक। अच्छा, अब अगर मान लीजिए आप एसिड को डालते हैं किसके ऊपर, ब्लू लिटमस के ऊपर, तो वो अपने आप ही रेड हो जाता है। क्लियर है। और अगर आप बेस को डालते हैं किसके ऊपर, रेड लिटमस के ऊपर, तो वो ब्लू में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। ये आप याद कर लीजिएगा, ये वैसे है 10th में, सही, फिर भी आप याद कर लीजिएगा, आपसे पूछ लेते हैं वो। अगर आप ब्लू लिटमस लेकर जाते हैं, उसके ऊपर अगर आप
एसिड डालते हैं तो वो ब्लू लिटमस अपने आप ही रेड लिटमस में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। अब अगर मान लीजिए आप रेड लिटमस लेते हैं, उसके ऊपर कोई बेस डालेंगे तो वो अपने आप ही अपना कलर रेड से क्या करेगा, ब्लू कर लेगा। अब देखिए पहला क्वेश्चन, इसमें कहा है विच इज ट्रू अबाउट द बिहेवियर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पे जो एसिड और बेस लेना है, सही, वो सॉल्यूशन फॉर्म में होना चाहिए, सही। अगर मान लीजिए सॉल्यूशन फॉर्म में नहीं है तो आपको ये ब्लू लिटमस और रेड लिटमस जो यूज़ करना है उसमें मॉइस्चर जरूर होना चाहिए। क्लियर है? क्यों? एसिड और बेस अपनी प्रॉपर्टी जब तक शो नहीं करते हैं जब तक कि वो एक्वस सॉल्यूशन में ना हो। क्लियर है? तो या तो आप एसिड और बेस जिसको चेक कर रहे हैं उसका सॉल्यूशन हो, या फिर आप इसको क्या करोगे, वेट कर कर यूज़ करोगे, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा अब देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है ये बेसिक होता है नेचर में। क्लियर है? इसके लिए हमने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, हमने मैग्नीशियम को बर्न किया था एयर में, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा था। क्लियर है? अब इस मैग्नीशियम ऑक्साइड के ऊपर जब हम रेड लिटमस लेके जाते हैं और रेड लिटमस को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी उसके ऊपर डाल लेंगे, सही। जब रेड लिटमस इसके ऊपर ले आकर हम रखते हैं तो रेड लिटमस धीरे धीरे क्या होता है, ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि ये शो करता है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है वो बेसिक होता है नेचर पे। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडिड टू जिंक placed in a test tube, the observation made is the surface of the metal turns shining, the reaction mixture turns milky, greenish yellow gas is evolved, the colorless and odorless gas evolves with bubbles। अब देखिए आप एक बेसिक चीज़ समझ लीजिए, जब भी आप मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस क्या होती है, रिलीज होती है। क्लियर है? तो यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड दिया हुआ है और जिंक ग्रेन्यूल्स आपको मेटल दे रखा है। तो जब भी आप किसी मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो एक तो मेटेलिक सॉल्ट बनता है और दूसरा हाइड्रोजन गैस क्या होती है, रिलीज होती है, सही। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन आप क्या लिखोगे, द कलरलेस एंड ऑडरलेस गैस इवॉल्व विद बबल्स। नेक्स्ट है बच्चों SO3 इज, आपको बताना है SO3 सल्फर ट्राईऑक्साइड जो होता है ये बच्चों एसिडिक होता है नेचर में। ये क्या होता है, एसिडिक होता है नेचर में। क्लियर है? अच्छा इसको भी आप समझने की कोशिश करिए, वैसे तो आपके कोर्स में नहीं है। देखिए जितने भी मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, जितने भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं ये तो बेसिक होते हैं नेचर में, और जितने भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर में, ये आप ध्यान रखिएगा, एक्सेप्ट वाटर। सही, वाटर किसका ऑक्साइड है, हाइड्रोजन का ऑक्साइड है, मगर ये न्यूट्रल होता है नेचर में। सही, जबकि जितने भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, ये भी तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, मगर ये फिर भी एसिडिक नहीं होता, ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है। वैसे जितने भी मेटल के ऑक्साइड्स होंगे, सही, सोडियम का ऑक्साइड ले लीजिए, पोटेशियम का ऑक्साइड ले लीजिए, किसी भी मेटल का ऑक्साइड लेंगे तो वो बेसिक होगा नेचर में, और किसी भी नॉन मेटल का ऑक्साइड ले लीजिए तो वो एसिडिक होगा नेचर में। तो सल्फर क्या होता है बच्चों, नॉन मेटल होता है, तो इसलिए इसका जो ऑक्साइड होगा ये क्या होगा, एसिडिक होगा नेचर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये O2 बच्चों यहाँ लिखा जाएगा, ये 2 यहाँ लिखा जाएगा। सही, यहाँ पे इन्होंने कहा हाइड्रोजन गैस जो है ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन कर कर वाटर बनाती है, तो ये कैसी रिएक्शन है। सही है, यहाँ पे देखिए 2 रिएक्टेंट जो है मिलकर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ये कौन सी रिएक्शन होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन ये होती है। क्लियर है? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कौन सी होती है बच्चों, जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स मिलकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं, इन्हें बोलते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अच्छा, जहाँ पर आपको एक रिएक्टेंट दे रखा हो और उससे 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनते हैं, उन्हें बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन,
अच्छा, जहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर ये रिएक्शन आपको दे रखी है, यहाँ पर अगर मान लीजिए सी जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है ए से, तो सी क्या करता है, ए को इसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। तो इस तरह की रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जहाँ पर ज़्यादा रिएक्टिव मेटल जो होता है उसका जो एटम होता है वो कम रिएक्टिव एटम को क्या करता है, उसकी पोजीशन से डिस्प्लेस कर देता है। और अगर मान लीजिए एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, जैसे मान लीजिए ए और सी ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, क्लियर है, तो यहाँ पर ए और सी क्या कर रहे हैं, अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं ना, तो एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है, इसे हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और जितनी भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती हैं इनमें प्रेसिपिटेट जरूर फॉर्म होता है, इसीलिए इन्हें हम प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी बोलते हैं। तो ये आप बच्चों नोट कर लीजिएगा, और इन सब के एग्जांपल्स आप आज देख चुके हैं, थॉरोली आप 10th क्लास में ही इसको पढ़ेंगे। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, यहाँ पे दो रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट बना लें, इसलिए ये कौन सी रिएक्शन होगी, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें उन्होंने कहा व्हेन अ प्रोसेस एक्स इज अप्लाइड टू एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट इट टर्न्स ब्लू, हेयर द प्रोसेस एक्स रिप्रेजेंट्स। सही, देखिए ऐसा होता है, इसमें उन्होंने कहा आपको एक एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट दे रखा है। एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट कौन सा कॉपर सल्फेट होता है, जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं। देखिए दो तरह का कॉपर सल्फेट होता है, एक होता है हाइड्रस और एक होता है एनहाइड्रस। सही, ये एनहाइड्रस है जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स नहीं है, ये हाइड्रस है जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। सही है, अब वो कहते हैं ये आपको एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट दे रखा है, अब आपने इसके ऊपर एक प्रोसेस अप्लाई किया और इसका कलर ब्लू हो गया। इसका कलर ब्लू होता है बच्चों, और इसका कलर क्या होता है, वाइट। सही, तो ऑब्वियस सी बात है आपने इसके अंदर वाटर को क्या किया होगा, मिक्स किया होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, डिसोल्यूशन इन वाटर। एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट में जब हम वाटर डालते हैं तो उसका कलर जो होता है अपने आप ही धीरे धीरे ब्लू होना चालू हो जाता है। नेक्स्ट है बच्चों, ये बच्चों आपको रिएक्शन यहाँ पर याद करनी पड़ेगी। बेरियम नाइट्रेट को जब हम सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट कराते हैं तो एक तो बेरियम सल्फेट बनता है और एक सोडियम नाइट्रेट बनता है। तो यहाँ पे जो एक्स कंपाउंड मिसिंग है वो क्या होगा, बेरियम सल्फेट होगा। क्लियर है, ये आपकी लास्ट वाली रिएक्शन थी। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे इन्होंने कहा है कंबशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, आपको बताना है कंबशन किस चीज़ का एग्जाम्पल होता है। बच्चों ये तो वैसे 10th में गलती से यहाँ पर आ गया है। कंबशन जो होता है वो रिडॉक्स रिएक्शन होती है। क्लियर है, ये भी आप नहीं समझ पाएंगे, इसकी मैं अलग से क्लास लेके आपको समझा दूंगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इसमें उन्होंने कहा है वी विल ऑब्जर्व अ प्रेसिपिटेट टू अकर इन द सॉल्यूशन व्हेन बेरियम क्लोराइड इज एडिड टू सोडियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड इज एडिड टू सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट इज एडिड टू सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडिड टू बेरियम क्लोराइड। तो देखिए ये आपको याद ही होगा, बेरियम क्लोराइड को जब हम सोडियम सल्फेट में ऐड करते हैं तो इसमें बेरियम सल्फेट बनता है और सोडियम क्लोराइड बनता है, और यहाँ पे बेरियम सल्फेट जो होता है वाइट प्रेसिपिटेट होता है। ये आपकी लास्ट रिएक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इसमें उन्होंने कहा बेरियम सल्फेट जो होता है ये वाटर के अंदर सोल्यूबल होता है, पार्सली सोल्यूबल होता है वाटर में, और ये इनसोल्यूबल होता है वाटर में। ये सी पोर्शन सही है बच्चों, ये इनसोल्यूबल होता है वाटर में। क्यों, ये वाइट प्रेसिपिटेट होता है, और प्रेसिपिटेट जो होता है वो सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन बिकॉज। देखिए हमने एक सबसे पहला जो पार्ट किया था उसमें हमने आयरन को जो है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाला था, तो इससे एक तो फेरस सल्फेट सॉल्यूशन बना था और कॉपर रिलीज हुआ था, और ये कॉपर धीरे धीरे किसके ऊपर इकट्ठा हो जाता है, आयरन के ऊपर इकट्ठा हो जाता है।
अब वो कहते हैं यहाँ पर आयरन ने कॉपर को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से क्यों डिस्प्लेस किया। उसका रीज़न है क्योंकि आयरन जो होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है किससे, कॉपर से, इसलिए वो उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से उसको डिस्प्लेस कर देता है। तो यहाँ पे आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 11, सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड इन अ टेस्ट ट्यूब, द ऑब्जर्वेशन मेड इज। देखिए यहाँ पर हम सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को मिक्स कर रहे हैं एक टेस्ट ट्यूब में, तो आपको कौन सा ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगा। सही, ये तो आपकी लास्ट रिएक्शन थी, अ वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट इज फॉर्म्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, देखिए इसमें मैंने कहा आयरन फिलिंग्स वर एडिड टू द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। हमने आयरन फिलिंग्स को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाला। आफ्टर 10 मिनट्स इट वाज ऑब्जर्व दैट ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन चेंजेस एंड अ लेयर gets deposit on the iron fillings. The color of the solution and that of the coating on iron fillings are। देखिए इस रिएक्शन को मैं अच्छे तरीके से बता देता हूँ। जब भी हम आयरन की नेल्स को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालते हैं तो आयरन क्या करता है, कॉपर को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है और फेरस सल्फेट सॉल्यूशन बनता है, और कॉपर के जो डिपॉजिट्स होते हैं वो आयरन के ऊपर इकट्ठा होना चालू हो जाते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन होता है कॉपर सल्फेट उसका कलर होता है ब्लू, और जो फेरस सल्फेट होता है उसका कलर होता है पेल ग्रीन। सही, और रेडिश ब्राउन कलर की कोटिंग किसके ऊपर हो जाती है, आयरन के ऊपर हो जाती है, रेडिश ब्राउन। सही, कॉपर का कलर क्या होता है, रेडिश ब्राउन होता है, तो उसके जो डिपॉजिट्स होते हैं वो धीरे धीरे किसके ऊपर इकट्ठा होने चालू हो जाते हैं, आयरन के ऊपर इकट्ठा होना चालू हो जाते हैं। क्लियर है। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, पेल ग्रीन मतलब ग्रीन ही हो गया, और रेडिश ब्राउन, तो डी पार्ट इसका, डी ऑप्शन इसका सही है। अब देखिए 11 नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर उन्होंने कहा 100 ml ऑफ सैचुरेटेड copper sulfate solution was taken in a beaker. A small amount of iron fillings was added to the beaker and left undisturbed overnight. The mixture was then filtered to obtain the residue. The color of the residue found to be reddish brown. सही, जब आप फिल्टर करेंगे सारा का सारा सॉल्यूशन तो चला जाएगा, और जो आयरन के ऊपर रेडिश ब्राउन कोटिंग होगी वही क्या होगी, सिर्फ बच जाएगी। नेक्स्ट देखिए बच्चों, लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपको बताना है इनमें से कौन सी जो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। देखिए पहली जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। यहाँ पर एक रिएक्टेंट जो है दो प्रोडक्ट्स में डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे देखिए ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। यहाँ पर सोडियम और सिल्वर के आयंस जो हो रहे हैं वो आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। क्लियर है। अब देखिए ये जो है जिंक क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर रहा है, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्लियर है बच्चों।